Hi everyone, welcome to this another session of CAT under LLRDI under 10 minutes. मैंने देखा है आप में से काफ़ी लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे हैं, तो इन विच आई एम डिस्कसिंग कि आप 10 मिनट के अंदर CAT का LRDI सेट कैसे कर सकते हैं, राइट? वाई इज इट इंपॉर्टेंट? ऑफ कोर्स हम लोग वैसे तो सेट्स पूरे टाइम में सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन यार एग्जाम में तो हमें 10 मिनट के अंदर ही करना है ना. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम? सो हाउ डू वी डू इट इन द एग्जाम टाइम? दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस सीरीज. मैं पिछले दोनों सेशंस में मैंने आपको कैट 2023 के स्लॉट 3 और स्लॉट 2 का एक सेट लेके बताया कैसे वो 10 मिनट के अंदर हो सकते थे. आज स्लॉट 1 ले रहा हूं. सो कैट 2023 के तीनों स्लॉट्स का जो एक आसान वाला सेट था विच कुड हैव बीन सॉल्व्ड अंडर 10 मिनट्स, उसको मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, राइट? तो आज की कहानी हमारी कैट 2023 के स्लॉट 1 के क्वेश्चन के साथ शुरू होती है. सो लेट्स स्टार्ट. So here is an offer from Unacademy for all of you. Of course, Diwali is here now. So festivities are there in the air too. So festivities must be celebrated through education as well. So Unacademy is currently giving you a flat 50% off on all the subscriptions, whether it is for CAT or the other management entrance test, that is OMETS. The best part about Unacademy is that whenever you take any subscription, actually you can watch all the batches throughout. For the other courses, if you are let's say subscribed for CAT, you can watch the videos of OMETS or the other batches in which you have not subscribed. So it's a subscription thing that you can take, and all of that you are currently getting at just 50% off. उसके लिए बस आपको ये कोड यूज करना है. दिस इज माई नेम, दैट इज सरल. When you use this code, you get the maximum possible discount. Okay? Also, apart from this, there is another offer that currently Unacademy is giving you, and that another offer is this next batch that we are launching from 26th of October, right? You see, it is the all-star batch for CAT 2025. That means a batch which will be taken by all our star teachers that you see on the screen, and you'll be getting CAT 2025 assuredly over here. What is that? I hope that you have seen the other videos as well. You will get to know about this, that if you do not get admission into the IIMs, you can actually study an extra year with us at the same fee. Also, you will get the complete CAT and OMET syllabus, the unlimited access to all the batches and the test series as well. That all would be provided to you, and as I said, currently you are getting it at 50% flat discount. So do take advantage of this as well. I'm sure this batch is going to be a stepping stone, a big stepping stone in your CAT journey. Okay? And apart from this, we also have this CAT toolkit right now. CAT 2024 last lap toolkit, in which by paying just 999 rupees, you can get 25 full length mock tests along with their analysis. और अगर आपको books भी चाहिए preparation के लिए, so you can get it at just 3,999 rupees. Do take help of this as well, guys. And finally, I have always been telling you about this All India Management Test, AIMT. It has always been very important because it's absolutely free for everyone. All of you must write these AIMTs, and the next one is on 27th of October at 8:30 AM, 12:30 AM and 4:30 PM at these 3 timings. अच्छी बात यह है कि ये completely free होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं, और जब ज़्यादा स्टूडेंट्स लिखते हैं तो you also get to know about your standing, कि आप अभी कहाँ मतलब बच्चों के बीच में लाई करते हैं, आप कितना और ज़रूरत है प्रिपेयर करने की. You will be getting a proper analysis of this exam as well. So do take use of this test as well. Okay? All the very best, guys. आज का सेट, this is a set from CAT 2023 slot 1. पढ़ते हैं. ये अकेला डेटा है इस पे बेस्ड, इसीलिए मैंने सारा आज एक ही पेज पे लिख डाला है. Faculty members in a management school can belong to one of the 4 departments: finance and accounting, marketing and strategy, operations and quant, and behavior and human resources. The number of faculty members in F&A, M&S, O&Q, B&H are 9753 respectively. Breather, respectively. Professor P, Professor Q, Professor R, Professor S are 4 members of the school's faculty who were candidates for the post of dean of the school. Only one of them was from O&Q. 4 लोग हैं जो डीन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं उनमें से एक ही आदमी O&Q डिपार्टमेंट से. दिमाग में बैठ गया, 4 डिपार्टमेंट, 9753 लोग, और उसमें 4 लोगों ने अप्लाई किया डीन के लिए, और ओनली एक ही O&Q से है. चलो, every faculty member including the 4 candidates
voted for the post. हर फैकल्टी मेंबर इंक्लूडिंग दीज फोर, इन्होंने भी चारों ने वोट किया है. In each department all the faculty members who were not candidates voted for the same candidate. एक डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट नहीं है उन्होंने एक ही आदमी के लिए वोट किया है. ठीक बात है. द रूल्स फॉर द इलेक्शन आर लिस्टेड बिलो. ये रूल्स आपको दे रखे हैं. देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम ए सिंगल डिपार्टमेंट. तो एक डिपार्टमेंट से ज्यादा 2 कैंडिडेट. तो या तो 2 डिपार्टमेंट से 2 होंगे, या 1 से 2 1 से 1 होगा, या चारों से 1 1 होगा. ये पॉसिबिलिटीज हैं. अ कैंडिडेट कैन नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ऑब्वियस है. फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर ए कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट. तो कोई भी फैकल्टी मेंबर अगर वो करेगा वोट तो अपने ही डिपार्टमेंट का जो कैंडिडेट है, जो डीन बनने के लिए, उसको वोट नहीं करेगा. 4 लोग खड़े हुए, वो भी वोट करेंगे, सारे डिपार्टमेंट वाले वोट करेंगे. एक डिपार्टमेंट वाले एक ही आदमी को वोट करेंगे, वो डिपार्टमेंट वाले जो कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अपने डिपार्टमेंट वाले को वोट वो नहीं कर सकते. आफ्टर द इलेक्शन इट वॉज ऑब्जर्व दैट समथिंग इज गिवन. जो मैंने अगले पेज पे लिख दिया है उस पे आते हूं मैं इसके बाद. सो नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पेज. तो जो डेटा मैंने अभी तक बोला वो मैंने यहां एक टेबल में लिख डाला है. F&A, M&S, O&Q, B&H 9 7 5 3 मेंबर्स. प्रोफेसर PQRS. उसके बाद टोटल कैंडिडेट्स मुझे दे रखे हैं. नॉन कैंडिडेट और कैंडिडेट कितने अभी तक मैं नहीं जानता. ये पता है ये मैक्सिमम 2 है. ये 2 से ज्यादा कैंडिडेट इसमें किसी में नहीं हो सकते. यहां के बारे में क्या दे रखा है ये गिवन है आपको यहां पे. पढ़िए. आफ्टर द इलेक्शन इट वॉज ऑब्जर्व दैट प्रोफेसर P रिसीव्ड 3 वोट्स. P को मिले 3 वोट्स. प्रोफेसर Q रिसीव्ड 14 वोट्स. Q को मिले 14 वोट्स. प्रोफेसर R रिसीव्ड 6 वोट्स. प्रोफेसर R को मिले 6 एंड प्रोफेसर S रिसीव्ड 1 वोट. इनको मिला 1. प्रोफेसर P वोटेड फॉर प्रोफेसर R. P ने वोट किया R के लिए. Q वोटेड फॉर S. Q ने वोट किया S के लिए. R वोटेड फॉर Q. R ने वोट किया Q के लिए एंड S वोटेड फॉर P. S ने वोट किया P के लिए. कोई भी कैंडिडेट अपने डिपार्टमेंट के कैंडिडेट के लिए वोट नहीं कर सकता. मतलब P और R सेम डिपार्टमेंट से नहीं है, मतलब Q और S सेम डिपार्टमेंट से नहीं है. R और Q, S और P ये सेम डिपार्टमेंट के लोग नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने डिपार्टमेंट वालों को तो वोट करता नहीं है. अगली बात. प्रोफेसर P को 3 वोट मिले और प्रोफेसर P को 1 वोट तो S से मिल गया. इसका मतलब प्रोफेसर P को इसके अलावा 2 वोट्स और मिले. प्रोफेसर Q को 14 वोट मिले, लेकिन 1 वोट तो R से मिल गया. उसके अलावा 13 वोट मिले. प्रोफेसर R को 6 वोट मिले, जिसमें से 1 तो P से मिल गया, इसके अलावा 5 मिले. सिमिलरली सैमुअल को 1 भी वोट बाकी किसी का नहीं मिला. अब ये जो वोट मिले इनको ये कहां से मिले हैं? ये नॉन कैंडिडेट से. और ये उसने आपको पहले ही बता दिया है कि नॉन कैंडिडेट्स एक डिपार्टमेंट के सारे एक ही मेंबर को वोट करते हैं. तो सैमुअल को तो किसी ने वोट किया नहीं. सोच के देखिए, P को 2 वोट अगर मिले हैं तो P को 2 वोट कौन से डिपार्टमेंट के लोग कर सकते हैं? यहां के डिपार्टमेंट में अगर मैक्सिमम 2 कैंडिडेट भी हुए तो ज्यादा से ज्यादा नॉन कैंडिडेट 7 बनेंगे. वो 7 तो एक आदमी को वोट करेंगे तो P को नहीं करेंगे. सिमिलरली M&S में ज्यादा से ज्यादा 5 बनेंगे. सिमिलरली O&Q में तो ये दे रखा है, ये पहले ही गिवन है. O&Q से तो एक ही आदमी दिया हुआ था ना, पिछले पेज पे था, यहां नहीं अभी, कि O&Q से देयर इज ओनली 1 फैकल्टी मेंबर. तो यहां तो एक ही है, तो इसका मतलब यहां तो नॉन कैंडिडेट 4 ही वोट देंगे. तो इसका मतलब P को अगर कोई वोट मिल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ B एंड H से मिल सकते हैं 2. भाई एक डिपार्टमेंट के सारे लोग एक ही आदमी को वोट करते हैं, तो जिसको 2 वोट मिले कहां से मिले हैं? यहां से मिले हैं. इसका मतलब यहां पे एक ही कैंडिडेट है. यहां का एक कैंडिडेट रहा होगा, 2 नॉन कैंडिडेट, दोनों एक ही आदमी को वोट करेंगे. वो आदमी है कौन? P. इन दोनों ने P को वोट किया होगा. सवाल आता है बाकी तीनों के बारे में. S को तो कोई वोट कर नहीं रहा. ये तीनों लोग किसको वोट कर रहे हैं? या तो Q को या R को. ठीक है. अब आता हूं मैं R पे. R को कितने वोट मिल रहे हैं? 5 वोट कहां से मिलेंगे? ये तो कर नहीं पाएगा. यहां से तो 4 इकट्ठे वोट जा रहे हैं, उसके बाद 1 वोट कहां से मिलेगा Q को? और यहां से कम 7 वोट तो जाएंगे. भाई 2 मेंबर भी अगर हो गए तो भी नॉन कैंडिडेट 7 बचे. 7 लोग वोट कर देंगे तो 5 कैसे मिलेंगे? 5 वोट किसी आदमी को मिलेंगे तो एक ही तरीके से जब M&S वालों ने उसको वोट किया होगा तो M&S वालों ने सबने R को वोट किया होगा, और 7 में से 5 वोट अगर वहां कर रहे हैं तो 2 इसका मतलब यहां पे कैंडिडेट है. और अगर यहां पे 2 कैंडिडेट है, एक यहां पे 4 ही कैंडिडेट है. यहां कोई कैंडिडेट नहीं है. यहां पे 9 के 9 लोगों ने वोट किया. किसको? 9 + 4 13 वोट जो Q को मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि इन्होंने Q है सबको उसको वोट किया है. पहली बात. दूसरी बात,
ये कैंडिडेट है कौन कौन, अब ये फिगर आउट करते हैं कि ये कैंडिडेट कौन कौन है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे ये दो लोग इकट्ठे कौन है, ये दो लोग इकट्ठे, देखिए पी ने आर के लिए वोट किया तो पी और आर एक ग्रुप के लोग नहीं है, पी ने एस ने पी को वोट किया, पी और एस भी एक ग्रुप से नहीं है। भाई एक डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे को वोट नहीं कर सकते, तो पी का मेंबर पी के साथ आर नहीं आ सकता, पी के साथ एस नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर किसी एक ग्रुप के दो मेंबर्स हैं तो वो पी और क्यू हो सकते हैं। बाय द सेम लॉजिक क्यू ने एस को वोट किया और आर ने क्यू को वोट किया, तो क्यूएस और क्यूआर भी एक डिपार्टमेंट से नहीं हो सकते। तो सीधी सीधी बात है, पी और क्यू ही एक डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, या फिर आर और एस। अब यहां पे यहां के मेंबर्स आर को तो वोट कर रहे हैं, जब वो आर को वोट कर रहे हैं इसका सीधा सीधा मतलब ये है पी और क्यू का ग्रुप जो है वो दो मेंबर्स इस ग्रुप के हैं। इसमें जो आपके कैंडिडेट है वो आर और एस नहीं हो सकते, क्योंकि इसके मेंबर्स आर को वोट कर रहे हैं, अपने मेंबर को वोट कैसे करेंगे। तो यहां पे आपके पास पी क्यू आ गया। अब सवाल आया इन दोनों जगह पे, आर और एस में से कोई एक ये होगा, आर और एस में से कोई एक ये होगा, और दोनों हो सकते हैं। रीजन ये है यहां के मेंबर क्यू को वोट कर रहे हैं, तो चाहे आर हो या चाहे एस हो क्यू को कर सकते हैं। यहां के मेंबर्स पी को वोट कर रहे हैं, चाहे आर हो चाहे एस हो पी को वोट कर सकते हैं। आवर जॉब इज डन, दैट्स इट। इसके बेसिस पे आंसर करना था, सिर्फ इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा थी, अदरवाइज भरने में तो मैं कतई कोई टाइम नहीं लगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या क्या पूछता है क्वेश्चन आपसे। पहला क्वेश्चन, which two candidates can belong to same department? P and Q can belong to same department. My answer is option 1. Second, which of the following can be the number of votes that Professor Qureshi received from a single department? Professor Qureshi को या तो 9 votes मिले एक डिपार्टमेंट से या 4, 9 और 4 में से 9 दे रखा है। My answer is option 1. Third, if Professor Samuel belongs to B and H, अगर सैमुअल है B and H से, यहां से सैमुअल तो यहां से R हो जाएगा। Which of the following statements are true? Professor P belongs to M and S. P belongs to M and S, ये तो करेक्ट है। Professor R belongs to O and Q. R belongs to O and Q, ये भी करेक्ट है। So my answer is second option. Both statements are true. दोनों statements करेक्ट हैं। What best can be concluded about the candidate from O and Q? O and Q से क्या बता सकते हो आप? It was either R or S. Either R or S, that is option 1. या तो ये रामास्वामी था या सैमुअल था। And lastly, last question, which of the following statements is or are true? Non-candidates from M and S, non-candidates from M and S, they voted for Qureshi. No, they voted for R. गलत है। Non-candidates from F and A के non-candidates, they voted for Professor Qureshi. Yes, they voted for Professor Qureshi. So only statement B is correct, and that's right. And we have been able to do this question in probably less than 9 minutes. अभी भी 1 minute 10 seconds बचा हुआ है मेरे पास, right? That means this set was doable probably in 8 minutes 30 seconds. तो इतने में ये करने लायक सेट था, और ये है 2023 का स्लॉट 1। आज का सेट जो मैं डिस्कस आपसे करना चाहता था, इट्स दिस नाउ for SNAP and NMAT 2024, if you are preparing for it, so currently we have a batch in which we have 100 plus live sessions, unlimited access to all batches, test series, and complete SNAP and NMAT syllabus would be covered. Do attend this batch. You'll find the link of that in the description, right? And while doing the registration, use the code SARAL to get maximum possible discount. Also, we are currently having this last lab toolkit in which you are getting 25 full length tests, detailed test analysis as well, at a price of just 999. And if you need the books as well, for which you have to pay 3,999, and for that too you have to use the code SARAL. That's all that you have to do. I hope that you understood my messages. I hope you understood our today's set as well. So that's all for today, guys. If you are liking this series, please do press the like button as well, so that I can continue with that. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कोई खास नहीं है, तो you may skip that part. Otherwise, do put it in the comment section as well कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, I'll bring more such videos in future. That's all for today, guys. Thank you very much. Have a good day.